जस्ट बिफोर द सेक्स, कैसे एक दूसरे से बात करनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए? जैसे मान लीजिए यू वांट टू डू इट टुडे, है ना, तो आप सुबह से छोटे छोटे सिग्नल्स दे सकते हो. और यू कैन बी प्रिपेयर्ड टुडे, आई वांट यू टू सी इन दैट ड्रेस, ओके, ड्रेस अप नाइसली. या इफ योर चाइल्ड इज स्मॉल तो आप बोल सकते हो बच्चे को टाइम से सुला दिया, आई वांट यू टू बी विद मी फॉर सम टाइम, या आई एम कमिंग अर्ली टुडे, और विच फ्लेवर डू यू वांट. So let them guess which one it is, okay? कि आइसक्रीम का पूछ रहा है, condoms का पूछ रहा है. So make it very open. Let them play this. Or you can just forward something, a picture, a image, your honeymoon picture, है ना? You can just send an image and say, तू अभी भी इतना sexy लगता है मुझे. Just step it. Or you can just send a picture और नीचे लिखो याद है. Let him guess. This is a foreplay which excites the love in the couple. तो आपने ये किया. उसके बाद before 20-30 minutes get ready. If you want to bathe, very good. If you don't want to, it's okay. But get up, move yourself. Moving is very important before sex. Don't just sit and start. Moving यानी? Channelize your energy. Moving keeps your body active. That activates your pelvic muscles. Okay. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप गए, आप बेड पे बैठे और वहीं से आपने स्टार्ट कर दिया. So if you are planning it for today, after your meals or whatever, whenever you are planning it, move your body. 20 minutes, 30 minutes, keeping the utensils in the kitchen, wrapping the bed sheet, whatever you want to, move a little. Okay, that activates the energies and the store energies in your body. फिर आपकी performance अच्छी होगी. ठीक है? And then this 10 minutes of holding each other's hand, either talk or breathe. ठीक है ना? And just breath is also so very important. योग ये कहता है कि आप सेक्स करने से पहले अगर सिर्फ 10 बार अनुलोम विलोम कर ले तो it's going to be very different. आप अपने सारे थॉट साइड करके सिर्फ ब्रेथ पे ध्यान दे दो and it's going to be very different. ब्रेथ से पहले सारे योगा कर रहे हैं. सब कर लो और फिर आप जब करोगे तो आपके ब्रेन में सिर्फ वही होगा, कुछ और नहीं होगा. अगर आप ये नहीं करना चाहते, just hold each other's hand, talk it out. अच्छा ये हुआ, अच्छा ऐसे हुआ, अच्छा हम और कैसे करेंगे, just talk it out, okay? और उसके बाद look into each other's eyes and then get into bed. And then you can start with foreplay. You can use your fingers, you can massage your partner a little bit, you can give them a shoulder massage or a leg massage, start little with the thighs, do that little Imran Hashmi moments. Have it. Why Imran Hashmi was a craze that time? Why millennials are still so mad about him? Gen Z still maybe don't like them, but millennials, he still are crushes of every man wanted to be like him. क्यों था? क्योंकि he has given that bold talk everybody wanted to have. उसने वो करा जो तुम सोच भी नहीं सक रहे थे. तो तुम्हारे सेरोटोनिन्स ऐसे बढ़े उसको देखकर और वो सब चाहते थे. I remember the women started talking about it very openly. I wanted men like him. Oh. He was a craze. He went 2x, 3x, 10x. The legacy शाहरुख और सलमान has created, इमरान ने उसको 2 साल में तोड़ दी थी. That legacy. इमरान ने ऐसा क्या किया जो लड़कियों को बहुत कनेक्टेड फील कराया? उसने लड़कियों के लिए ही किया. राइट वो तो किया. हाउ कि जब आप उसके वो वाले सीन्स देखते थे, मे बी मर्डर के सीन्स देखते थे या वो वाली मूवीज के सीन देखते थे, हैव यू सीन हाउ बैडली ही इज इनटू वुमेन? He did what women liked. He made them feel that he want them. How? Doing everything. For example, starting from kissing to everything. He made Malika feel that she is Malika. By doing all the sexual activities, all the foreplays that women wanted. जैसे उसने खुद से नहीं किया, मैं ये करना चाहता हूँ इसलिए हम कर रहे हैं. He came down. He didn't want women to come down on him. उसकी वो सारी एक्टिविटीज में छोटी छोटी चीजें लाना, कार रोक के प्रपोज करना, द जन्नत सीन,
है ना, वो सारी एक्टिविटीज में ही मेड फीमेल फील वाओ. उसने वो जो सारी मूवीज करी ना गलत गलत कामों वाली, अल्टीमेटली उसके लाइफ में एक ही एम था कि इस लड़की को खुश करना. आवारापन ले लो या जो भी उसकी मूवीज थी, ऑल द सॉन्ग्स दैट ही मेड, ऑल इन लव, नो डांसिंग. इट वॉज ऑल सेंटर टू यू आर एवरीथिंग टू मी. वो एरा वो ढूंढ रहा था. और हम सब, every woman, if we are talking with a woman perspective, all women want a man who still chooses her after 40, 50, 30 years of marriage. Still crave for her body the way he was doing it from the day one. Right. And Maybe- every man, a woman that still respects and follows him the way she was doing from the day one. आई थिंक जो अटेंशन टू डिटेल इमरान हाशमी में थी, वो अटेंशन में भी उस लड़की को अपने लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट फील कराती थी कि और कोई दुनिया में इतना मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, इसके सिर्फ टच से मुझे खुद में that was high on sexual energies. See, Shahrukh was equally as respected for the women. Still, a woman wants to be the king of love and everything. लेकिन उसके साथ वो जो फैक्टर आता है ना, वो निभाने का है, साथ रहने का है. But with Imran, it's all about love. करेक्ट कि सीधा सेक्स नहीं है ना. हाँ, सेक्स से पहले आसपास जो वो चेस करता था और उसकी आंखें और ये वो बताता था that he wants this woman on bed. That is the कला. और यही कला हमारे कामा सूत्र में होती है. Playing with the eyes, playing with the poetry, dressing women well, ये सब कलास हैं. फोरप्ले कितनी देर का होना चाहिए आइडियली? अगर आप फिजिकल फोरप्ले की बात करते हो, जैसे हम सेक्सुअल फोरप्लेस कहते हैं, एटलीस्ट 15-20 मिनट्स, विच इंक्लूड किसिंग, लविंग, सकिंग ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्कैल्प टू द टोज, एवरीवेयर वेयरएवर यू फील लाइक और योर पार्टनर फील मोर इरोटिक, वहां पर आप किसी भी तरह की एक्टिविटी कर सकते हो. ठीक है, विद योर फिंगर्स, with eyes, with something hot, with some soft fur, feather. You can add as multiple things as you want to. So वो 20 minutes तक आप बहुत अच्छे से कर सकते हो for a female. If men wants it, definitely. What are the 3 best practices for foreplay? See, it can be different for different people. But अभी तक आपके experience के हिसाब से massages are the top one. ठीक है. Close the lights, put on a good scented candle, you can put some florals, take a good scented oil, whatever you feel like, and just massage a person. For 10 minutes, good 10-15 minutes, don't rush the massage. And then you find the person itself coming to you for love. आपको कुछ भी नहीं कहना है. ठीक है? But there should be no lust. ठीक है? Undress them. Use this, close the light and just be there. It will happen automatically. आपको दवाई की भी जरूरत, it's more powerful than Viagra. सबसे सेंसिटिव एरिया कौन सा है मसाज के लिए बॉडी में? See, हमारी सबसे ज्यादा नर्व एंडिंग स्कैल्प पे हैं, then back of your this ear, ठीक है, then neck, around your lips, then the breast. Male and female, both chest, nipples areas are so sensitive. Love handles are sensitive. Below the breast, okay, which we call as diaphragmatic area, वहाँ पे भी nerve endings अच्छी हैं. Okay, so once you hold yourself, it's a good blood vessels area. Then your axilla, beneath your thighs, butts for the men are very sensitive. क्योंकि वहाँ पे prostate stimulate होता है, तो उन्हें अच्छा लगता है. ठीक है. Then we have toes. Legs, feet, toes पे टिकल करते हैं, कितना ज्यादा फील होता है. इट्स अ गुड नर्व एंडिंग्स. ठीक है. जब आपको कैनुला, जब डॉक्टर्स वो लगाते हैं, अगर आपको नहीं मिलता तो पैरों पे लगाते हैं. छोटे बच्चों को पैरों पे लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे नर्व्स अच्छे से हैं, ब्लड सप्लाई अच्छी है, तो वहाँ पे आपको सेंसेशंस बहुत अच्छी फील होती है. लड़कियों को भी फीट में ज्यादा होती है? बिल्कुल. सो यू कैन स्टार्ट प्लेइंग देयर. सो दीज आर सम एरियाज यू शुड नॉट मिस. बट हर किसी की अपनी अंडरस्टैंडिंग है. जैसे कई लोगों को निपल्स पे सेंसेशंस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. देयर आर सम फीमेल हु वांट्स इट मोर देयर. ठीक है. फॉर सम पीपल दे डोंट डू किस, दे डोंट लाइक लिप किसेस.
ठीक है, तो उनका पार्टनर ऐसे बोलता है मैम इसको पसंद ही नहीं है, राइट, दुनिया को पसंद है, वो तो सिलेक्टिव हो सकता है। सिलेक्टिव है। हाँ, तो देयर आर सम पीपल हु डोंट लाइक इट, दे फील गुदगुदी देयर, हाँ, दे डोंट फाइंड इट इरोटिक, तो उनका मूड सारा Comfortable, स्विच ऑफ हो जाता है कि हाँ, ये मत करो, मुझे यहाँ पे बहुत अजीब लगता है। तो इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, फॉर सम पीपल इट्स लिटिल टिकलिंग, राइट, राइट, adjust it, tune it according to the volume that you want, and then try it. So sex should be, see, it is like a canvas, be open to explore. मैं आपको कैनवास दे सकती हूँ, कलर्स दे सकती हूँ, टेक्निक्स दे सकती हूँ, वो माइंडसेट दे सकती हूँ कि आप कैनवास खोल के पेंट करो, बट कैसे किस क्वांटिटी का पेंट करना है वो आपको एक्सपीरियंस से आएगा। राइट, राइट, राइट। आई थिंक अभी जो लास्ट हमने एक एपिसोड किया था सीमा आनंद मैम के साथ, तो उन्होंने बताया कि आपको कुछ साउंड्स भी यूज करनी चाहिए। आई थिंक उन्होंने बोला बेड के पास कुछ आप आवाज, कुछ बेल्स लगा दें, जिससे कि वो मूवमेंट को आप और एरोटिक बना सके। Yes, that is one of the kalas in Kama Sutra that says, see, बोलते हैं ना पायल जो फीमेल्स पहनते हैं, very erotic. So Madhuri Dixit is one of her shows. She said कि when I got married to Nene, I thought कि मैंने वो मूवीज में बहुत किया है, तो उसने बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं इतनी गुड लुकिंग थी और अच्छा, तो मेरे को था कि मैं ऐसे पायल पहनूंगी एक दिन एंड देन आई छन छन करके गो एंड हील फील एरोटिक। बोला वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस पायल घुंघरू है ना, एंड सीमा जी बहुत अच्छे से बोलती हैं कि इट्स अबाउट नेक, जो आप अपने नेवल पे चेन्स पहनते हो, ठीक है, वो सब बहुत एरोटिक हैं। फोरप्ले हो गया, सेक्स पे हम आते हैं थोड़ी देर बाद। व्हाट इज आउटप्ले? So it's basically like you have a match to play, ठीक है, तो आपने प्रिपरेशन करी। क्या प्रिपरेशन करी? आपने अच्छे ग्लव्स खरीदे, अच्छा बॉल्स देखा, आपने देखा मेरी ड्रेस कैसी है, एंड यू गेट रेडी, यू केम टू द प्ले ग्राउंड, यू मेट योर फ्रेंड्स, यू वार्म्ड अप, एंड देन यू आर प्लेइंग। सो दैट प्रिपरेशन is foreplay. The real match is the intercourse. And after that, so if you won or you lost, you have certain things to do. कैसे? आप अपना जो भी सामान लाए थे आप उसको बैग में रखोगे, ठीक है, आप खुद को मोटिवेट करोगे कि जैसा भी हुआ, अच्छा हुआ तो you'll motivate yourself, it's very good, बैड हुआ तो you'll tell, सेल्फ टॉक करोगे कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। you'll meet your friends again, you'll bid them bye, you'll go back, you'll travel back to your house. This is a complete process, ठीक है। इस कंप्लीट प्रोसेस में जो लोग मिस कर जाते हैं वो है आउट प्ले। मैच हो गया, खत्म, फिनिश, राइट। अगर आप मैच फिनिश करने के बाद अपनी सारी चीजें सही जगह पे नहीं रखोगे तो होगा क्या कि नेक्स्ट टाइम वो आपको मिलेंगी नहीं, या तो उसकी क्वालिटी डेप्रीवेट हो जाएगी, आपने कहीं भी फेंक दिया, नहीं मिल रहा, या वो दोस्त आपके फ्रेंड्स नहीं रहेंगे। तो अगर आप आउट प्ले मिस करते हो तो नेक्स्ट राउंड जब दोबारा खेलने जाओगे डिस्टेंस आ जाएगा। So outplay is so beautiful. Outplay में you can sit together, you can rub each other for a moment, you can talk how good this sex was, or how bad, or what improvements we can make, or we can make each other wear clothes back, or we can breathe together, sleep together, talk together. So many things you could do, but don't finish it abruptly. राइट, मतलब कह रहे हो कि फोरप्ले हुआ, आपने 15-20 मिनट टाइम दिया एक दूसरे को, इंगेज हुए, सेक्स हुआ, सेक्स के बाद आपका आउटप्ले शुरू होता है। तो आउटप्ले में एक दूसरे को कंफर्टेबल फील कराएं, केयरिंग फील कराएं, ये फील कराएं that the moment I spend with you, the speak of being each other, the high vulnerability we had with each other. इसके बाद I choose you, I feel this is the best time I had in my life, and you feel important. एक लड़की को जस्ट आफ्टर सेक्स क्या बोलना चाहिए? Maybe this was the best time I ever had. वो तो हर बार बोलते हैं। नहीं बोल रहे हैं ना, तब बोल रहे हैं ना जब दोबारा चाहिए कि बहुत अच्छा था, उसी समय बोलो, उसी समय किस करो, उसी समय बोलो you're the best thing that happened to my life, I love you. Then she will crave for it again. She want you to be in that state again where you are submissive. अगर आप उसे ऐसे ही रख दोगे तो she'll feel I'm just a toy to play with. उसका काम खत्म हुआ और वो गया। बहुत सी महिलाएं ऐसे ही फील करती हैं, किसका काम हुआ ये गया, मैं जाऊं अब, मेरा काम खत्म।
तुम्हें उसे फील कराना पड़ेगा कि तुम्हें वही चाहिए, और उसके लिए वो एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से एंडिंग हुआ तो नेक्स्ट टाइम आपकी मूवी देखने कोई नहीं आएगा। कितना टाइम देना चाहिए? Depends, 10 minutes, 15 minutes. But it's important. You cannot miss that. रात को कितनी बार सेक्स हो सकता है या करना चाहिए? जितनी आपकी कैपेसिटी है। ऐसा कुछ नहीं है कि इतने के बाद मरने लगोगे, ऐसा कुछ नहीं है। It depends on your body. Right. So, from one round to the another round, your body needs some time to repair. उस टाइम को रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है। ओके, फ्रॉम वन ऑर्गेजम टू द नेक्स्ट ऑर्गेजम। मेल्स में, फीमेल कैन हैव मल्टीपल ऑर्गेजम्स, हर बॉडी स्टिल नीड्स टाइम टू रिपेयर, ठीक है। दैट पीरियड इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड। दैट कैन बी फ्रॉम 5 minutes to 24 hours, डिपेंड्स ऑन हाउ हेल्दी योर बॉडी इज, ठीक है। तो कुछ पुरुष एक करने के बाद 24 घंटे के बाद दोबारा नहीं कर पाते, उनको इरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। कईयों को हो जाता है आउट ऑफ प्रेशर कि हमने रूम ले रखा है, अब 2 बार करूंगा, 3 बार करूंगा, समथिंग लाइक दैट, या मिले ही है तो कर लें वाला कुछ ऐसा सीन। तो दे डू 2 or 3 राउंड्स और समथिंग। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर फील कर रहे हो आपको इरेक्शन फिर से आ गया है, आपका पार्टनर सपोर्टिव है, तो आप कर सकते हो। नॉर्मली इरेक्शन कितना आ जाता है? जितने आपने केसेस देखे, कितना एक बारी में जब कोई पार्टनर साथ में है, कितने राउंड्स पॉसिबल होते हैं सेक्स के? प्रोबेबली 2। Okay. उसकी इंटेंसिटी 3-4 हो सकती है, बट 2 इज क्वाइट जेन्युइन। Okay. हो सकते हैं। Okay. और एक राउंड से 2 राउंड के बीच में टाइम डिपेंड्स, 5 minutes to 30 minutes, 2 hours। Okay. जेन्युइन। Okay. और इसमें आपका आउटप्ले भी आ गया, और इसमें आप Maybe you can go change clothes, sit, eat, watch TV, sit with each other, वो आप कर सकते